Hello everyone, here is Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to study a very new topic which is under the subject of industrial engineering and management, और ये स्पेशली पढ़ता है ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर. ऑलराइट, तो ऑपरेशंस रिसर्च का मतलब होता है कि लाइक जो भी ऑपरेशंस हम लोग करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन से लेके फिर कैसे मैन्युफैक्चरिंग में कैसे सीक्वेंस में जाना चाहिए, फिर कितना फिर आपका स्केजुलिंग करना है ना, लोडिंग करना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दिस आर व्हाट इट वाज ऑल दिस आर operations research. All right, so that the operations of the production house or the factory runs smoothly और ज़्यादा डिले ना हो, और आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट जो है, कॉस्ट है, ये सब का ऑप्टिमल रिजल्ट है. आई मीन, so that your manufacturing time is also optimal, your profit is also optimal, the cost required is also optimal, you do not have so much of losses, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए. वो सब चीज़ को पूरा रिसर्च करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ऑपरेशंस रिसर्च बोलते हैं, which deals with every kind of operations that is taking place inside the production house. एंड ड्यू टू दैट बेसिकली ऑपरेशंस मैनेजर होते हैं जो लोग डिसाइड करते हैं द सीक्वेंस कैसे करना चाहिए, हाउ शुड व्हाट शुड बी द पाथ, एंड how much delay is like acceptable. If the job is getting so very delayed, then you have to change the entire operations and you have to decide a new course. So वो होता है operations manager का काम. So under this operations research we are going to study a topic that is known as sequencing, एंड इट इज वेरी एविडेंट फ्रॉम द नेम दैट सीक्वेंस का मतलब होता है किस ऑर्डर में होना चाहिए. 1 2 3 4 है ना, ऐसे ऑर्डर होता है, या फिर आप लोग 2 3 4 1, क्या एक ऑर्डर हम लोग डिसाइड करेंगे जिससे आपको रिजल्ट्स जो होगा, वॉट एवर द रिजल्ट्स यू विल गेट, दैट शुड बी ऑप्टिमल. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यहाँ का इसका सीक्वेंसिंग का डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे, एंड डेफिनेटली दिस एंटायर थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ एज यू ऑल नो. So the notes will be provided to you in the form of PDF, and then you will have the recorded video lecture as well. So definitely there should not be any kind of problem while preparing for gate examination from these PDFs or these videos. Okay, so let us start with the sequencing part, and under the introduction part we shall understand that, as I have already told you, sequencing is a method. It is a method. Yeah, you have to be very particular about what it is. So it is a method used in operations research. क्या करने के लिए ये जो method है, what does this method decide? This method determines the order in which the processes are to be processed, or different operations or jobs to be processed in a machine or a set of machines. For example, ये तो डिटरमाइन करेगा आपका सीक्वेंस. फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि यू हैव cylindrical bar, or you will have a square bar, and then you have to make a shaft out of it for a required diameter, and then the surface finish should be very high, very top quality of surface finish आपको डिसाइड करना है. ठीक है, तो आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है कि यू हैव टू टर्न इट इन ए लेथ में, और टर्निंग करने के बाद यू विल हैव टू रिमूव द एक्सेस मटेरियल, एंड देन यू विल हैव टू required diameter आने के बाद you will have to perform the surface finish operations also. If there is any kind of if there is any kind of defects, you have to remove those defects. So all these are sequence of operations which will take place in different machines, or sometimes all the entire operations are taking place in a single machine. ठीक है, जैसे कि वाटर बोतल पैकेजिंग जो होता है वो एक ही मशीन लाते हैं, उसी में वाटर बोतल का ये आपका वॉट एवर द डिस्पोजेबल वाटर बोटल्स होते हैं उसको वहां पे पैकेट हो जाता है. ठीक है, सो इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस. क्या डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस, यानी कि द ऑर्डर इन विच द प्रोसेसेस और द जॉब्स हम लोग मशीन में डालेंगे, सो दैट इट विल बी प्रोसेस्ड इन अ पर्टिकुलर मशीन और अ सेट ऑफ मशीन. ठीक है, सो व्हाई इज इट डन? तो क्या करते हैं ये तो डिसाइड हो गया. ठीक है, और क्यों करते हैं ये भी देख लो. दिस इज डन टू प्रोवाइड ऑप्टिमल रिजल्ट. ऑप्टिमल रिजल्ट मतलब क्या? जो हम लोग को चाहिए, जो बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. तो टाइम के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम इतना ज्यादा ना हो जाए, सो दैट द ऑर्डर दैट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम एनी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, इट शुड नॉट बी डिलेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक द एक्सपेक्टेड डिलीवरी इज बाय द मंथ ऑफ 5th of February, but due to the poor sequence of operations, your
manufacturing time has been delayed so much that you will be only able to deliver the product on or after 28th February. So it is a delayed time of 15 days. ठीक है, so काफी वो चीज it puts a negative remarks on the manufacturer or on the company, और जो कि नहीं होना चाहिए, and it might lead to the losing of consumers. In terms of cost also it should be optimal, because आपका सीक्वेंस सही रहेगा तो आपका डिले ज़्यादा नहीं होगा. डिले ज़्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट विल नॉट बी हैम्पर्ड. इफ द कंज्यूमर कैंसल्स द ऑर्डर, तो आपने जो बनाया है वो तो वेस्ट हो गया ना. सो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कंपनी के कॉस्ट में चला जाएगा, एंड दैट इज ट्रीटेड एज अ व्हाट, है ना. तो बैड डेट जैसा सिचुएशन आ जाएगा. सो दैट इन दैट विल कॉस्ट यू, दैट द कंपनी विल टेक इट इनटू रिकॉर्ड, और वहां पे वो जो कॉस्ट जो लगा है, वॉट एवर द कॉस्ट हैज बीन यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, दैट विल बी sheer वेस्ट. राइट. तो इसलिए टाइम एंड कॉस्ट और टाइम एंड प्रॉफिट आर वेरी इंटर रिलेटेड टर्म्स. तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इवन एज इन लाइफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो. हम लोग को अपना काम जो है वो पक्का टाइम पे करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिट हमको ही मिलेगा, नहीं तो there should be there will be some you will have setbacks, or you will have some kind of losses actually. तो देखो, छोड़ो ये सब बात, यहाँ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे 6 जॉब्स है, 1 2 3 4 5 6, ऑल रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंट डायग्राम्स और डिफरेंट सिंबल्स में है. ठीक है. सो दिस इज हेक्सागन, दिस इज अगेन हेक्सागन एंड ऑल. इसमें है हम लोग पेंटागन, ट्रायंगल एंड देन ट्रेपीजियम, एंड देन दीज आर ऑल डिफरेंट शेप्स ऑफ द प्रोसेसेस 1 2 3 4 5 6. अब ये है, ये बंदा जो है, ये दिस पर्सन इज द ऑपरेशंस मैनेजर, एंड ही हैज टू डिसाइड. आप लोग इंजीनियर्स भी हो सकते हैं डेफिनेटली. So he has to decide in what sequence shall I send this jobs into the machine for the jobs to be processed, so that our time and cost are what, optimal. ठीक है. तो ये सोच रहा है, तो यही जो सोच रहा है ना सीक्वेंस, यही चीज हम लोग को बताएगा कि सीक्वेंसिंग करना कैसे है. अगर इसको पता होगा कि सीक्वेंसिंग करना कैसे है, then definitely he will be able to design a very good sequence for this number of jobs, and definitely he will have optimal results in terms of time and cost. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला सबसे सिंपल सीक्वेंसिंग का एक तरीका देखते हैं. let us understand how sequencing is done. तो case 1 is the sequencing of n jobs on one machine. पहला केस, और ये पहला केस के अंदर 2 तरीका पढ़ेंगे हम लोग. केस 1 के अंदर फर्स्ट रूल इज ए नंबर रूल, दैट इज सीक्वेंसिंग बाय एसपीटी रूल, एंड दूसरा हम लोग पढ़ते हैं अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल. तो चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा. सीक्वेंसिंग ऑफ एन जॉब्स, यानी कि यहाँ पे जैसे कि आपको 6 जॉब्स दिख रहा था प्रीवियस डायग्राम में या फिगर में, 6 जॉब्स, यानी कि एन यहाँ पे हो जा रहा है 6. ठीक है. और ये मशीन 1 है, तो यहाँ पे मशीन जो है वो हो जाएगा 1. ठीक है. So if you have to provide, or you have to make a sequence of n jobs which has to be processed in one single machine, then what shall be the sequence of the jobs actually? So under this case we are going to study the first rule, that is the rule number A, the sequencing of n jobs in one machine by SPT rule. SPT rule, SPT का मतलब होता है, इट इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि सबसे कम टाइम लगे किसमें, प्रोसेस होने में, यानी कि उसको मैन्युफैक्चर होने में. इफ फॉर एग्जांपल वन जॉब इज टेकिंग 5 minutes, another job is taking 12 minutes, another job is taking 2 minutes, तो जॉब नंबर 3 विल हैव द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. ठीक है. तो हम लोग को देखना है, वी विल हैव द एंटायर जॉब्स इन आवर हैंड्स. क्या क्या जॉब्स हम लोग को परफॉर्म करना है मशीन में. तो हम लोग मशीन वो जॉब के हिसाब से हम लोग वी कैन एस्टिमेट, राइट, कि टर्निंग में कितना टाइम लगेगा, देन सरफेस फिनिशिंग में कितना टाइम लगेगा, ड्रिलिंग होल कितना टाइम लगेगा. ऑलराइट. सो ऑल दिस ऑपरेशंस विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, है ना. तो टाइम ऑफ मशीनिंग जो हम लोग बोलते हैं. सो ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव टू डू, एज यू ऑल नो. So by deciding the time of manufacturing or the time of processing, we will decide the sequence in ascending order of shortest processing time. यानी कि ascending order मतलब क्या, लो से हाई.
लो से कहाँ जाएगा, हाई की तरफ जाएगा, तो लोवेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से हाईएस्ट प्रोसेसिंग टाइम तक जाएगा. सो इन दिस मेथड द जॉब हैविंग द जॉब, है ना, जो हम लोग डिसाइड, जो हम लोग के पास लिस्ट आएगा जॉब्स का, हैविंग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसका सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम होगा, इट विल एंटर द फर्स्ट इन द सीक्वेंस, यानी कि सबसे आगे रहेगा, उसको सबसे पहले हम लोग फीड करेंगे. बात भी सही है, जिसका सबसे पहले टाइम खत्म हो जाएगा उसको हम लोग जल्दी कर करके हटाएंगे, है ना. तो दिस इज फर्स्ट रूल वेयर द सीक्वेंसिंग इज डन बाय ऑन द डन ऑन द वर्च्यू ऑफ शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. तो देखो यहाँ पे एक सिचुएशन है 1 2 3 4 5 6, देखो तो 1 को लग रहा है 70 मिनट्स, 2 को लग रहा है 80 मिनट्स, 3 को लग रहा है 140 मिनट्स, 4 को लग रहा है 45 मिनट्स, 5th को लग रहा है 120 मिनट्स एंड 6 को लग रहा है 30 मिनट्स. तो आउट ऑफ ऑल दिस प्रोसेसिंग टाइम दैट हैज बीन मेंशन्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच जॉब्स, आपको ये ध्यान देना है कि सबसे कम किसका प्रोसेसिंग टाइम है. So out of all these 6 jobs, job number 6 has the lowest processing time. So this will be fed into the sequence in the first place. तो देखो 6 को हम लोगों ने कहाँ ले आया है, this is the first process sequence बन रहा है यहाँ पे. तो 1 6 के बाद देखो 4 नंबर चला जाएगा 45 मिनट्स, ये है 2 सेकेंड नंबर पे. फिर उसका जॉब नंबर 1 को हम लोग भेजेंगे ये 3 पे, एंड देन 70 के बाद हमारे पास आएगा 80, फिर हम लोग 2 को भेजेंगे. तो हम लोग थोड़ा सा आगे का सीक्वेंस डिसाइड ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. तो 3 के बाद हम लोग किसको भेज रहे हैं, 3 के बाद हम लोग भेज रहे हैं 2 को, है ना. 2 के बाद हम लोग भेज रहे हैं 5th को, किसको भेज रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़, 2 के बाद हम लोग भेज रहे हैं 5th को, अरे कोई बात नहीं, चलिए. तो 2 के बाद हमारे पास आ जाएगा 5th, एंड लास्ट में सबसे बाद आ रहा है हम लोग का 3. देन वी हैव थर्ड नंबर जॉब इन द लास्ट, सॉरी या थर्ड नंबर जॉब. तो ये आपका, सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पे जॉब नंबर है, यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, सॉरी यहाँ पे आपको सीक्वेंस लिखना होगा. तो यहाँ पे सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, ये हो जाएगा 4th सीक्वेंस, ये हो जाएगा 5th, एंड ये हो जाएगा 6th. तो फर्स्ट प्लेस में कौन सा जाएगा, जॉब नंबर 6. सेकंड प्लेस में कौन जाएगा, जॉब नंबर 4. थर्ड प्लेस में जॉब नंबर 1. फोर्थ प्लेस पे जॉब नंबर 2. फिफ्थ प्लेस पे जॉब नंबर 5th, एंड 6th प्लेस पे जॉब नंबर 3rd जाएगा. तो ये हम लोग का सीक्वेंस बन गया. दिस इज द सीक्वेंस, यही हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस बना है. दिस इज द सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच रूल, SPT रूल. काफी सही. इज देयर एनी डाउट इन दिस, ठीक है. आगे बढ़े. तो देर इज अनदर टाइम नोन एज फ्लो टाइम. फ्लो टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लो टाइम. तो फ्लो टाइम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब. अभी जिसका निकालने वाले हैं, तो फ्लो टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब टू द टाइम एट विच द प्रीवियस जॉब वॉज फिनिश्ड. बात भी सही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास मशीन एक है ना, आपके पास मशीन जो है, देर इज ओनली वन मशीन यू हैव, and in that machine you are feeding it. For example, you are feeding the sequence in the form of 2, है ना, 4 1 3, है ना, 5, ऐसे करके भेज रहे हो, और ये ऐसे जा रहा है, सीक्वेंस आपका ऐसे है. तो दिस इज द फर्स्ट जॉब that will be sent into the machine. दिस इज योर मशीन, ठीक है. तो सेकंड नंबर जब जॉब जाएगा, और सबका अपना अपना प्रोसेसिंग टाइम है, तो सेकंड नंबर जॉब का प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ. एग्जांपल में, वो पहले वाले एग्जांपल को नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल तैयार कर रहा हूँ. सो सेकंड नंबर वाले जॉब का प्रोसेसिंग टाइम है 3 आवर्स मान लो. इसका फोर्थ नंबर जॉब का हमारे पास है 4 आवर्स, और इसका हम लोग के पास 7 आवर्स. then in this case we have 10 hours and then we have 12 hours for this. so shortest processing time is the time. ये हम लोगों ने सीक्वेंस बना दिया है. by which rule, SPT रूल से हम लोगों ने सीक्वेंस बना दिया है. the sequence is 2 4 1 3 5. it will be fed into the machine. the 2 having the shortest processing time is fed into the machine first. it is the first in the sequence, and corresponding to the sequence we all have the processing time in our hand. ये डेटा हम लोग को दिया हुआ रहेगा. तो 2 का प्रोसेसिंग टाइम जो होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम लिखते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम है 2 का कितना, 3. तो फ्लो टाइम, पहले तो मशीन आइडल है, अभी तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 + 3 = 3. तो फ्लो टाइम इसको 3 घंटा ही लगेगा.
सेकंड कौन सा आएगा? सेकंड आएगा जॉब नंबर 4, 2 के बाद आएगा जॉब नंबर 4, और 4 का प्रोसेसिंग टाइम है 4 आवर्स। तो इसके बाद 2 के बाद 3 आवर्स के बाद ही तो 4 नंबर आ पाएगा ना, बिकॉज मशीन तो एक ही है, एक बार में मशीन एक ही ऑपरेशन कर पाएगा। तो सेकंड खत्म होने के बाद देन ओनली द 4 विल एंटर, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 4। तो फ्लो टाइम क्या होगा? पहले वाला जो टाइम जब खत्म हुआ वहां पे हम इसका प्रोसेसिंग टाइम ऐड कर देंगे, तो 7 आवर्स है ना। तो ये इन द सीक्वेंस कितना देर, 7 घंटा तक रहेगा ना पूरा ऑपरेशन में। तो पूरा फ्लो जो हो रहा है आपका सीक्वेंस से लेके मशीन से लेके आउटपुट तक में, उसको 7 आवर्स लगेगा। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट जॉब दैट इज 1, इसका प्रोसेसिंग टाइम आपको दिया हुआ है 7, और 7 घंटा के बाद ही आफ्टर 7 आवर्स ओनली, 7th आवर द जॉब नंबर 1 विल एंटर इनटू द मशीन, है ना। तो 7 के बाद इसको फिर से जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो हो जाएगा 14 आवर्स। यानी कि वन नंबर जॉब, यानी कि वन जॉब, नॉट द वन नंबर जॉब इज इन द मशीन और इज इन द लाइन फॉर 14 आवर्स, है ना। तो देखो, दिस फ्लो टाइम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब टू द टाइम एट विच द प्रीवियस जॉब वॉज कंप्लीटेड, है ना। तो प्रोसेसिंग टाइम में हम लोग वो टाइम ऐड कर रहे हैं जिसमें पिछला जॉब जो है वो कंप्लीट हुआ था, उसको वैसे मिल जाएगा हम लोग को फ्लो टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज द सीक्वेंसिंग ऑफ वन एंड जॉब्स इन वन मशीन, इसलिए एक एक करके ही खत्म होगा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी another term that we have to deal with is known as due date। तो ड्यू डेट क्या है, उसका डेफिनेशन देख लो यहाँ पे। तो ड्यू डेट इज द टाइम अप टू विच द डिलीवरी और कंप्लीशन ऑफ द जॉब इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट किया गया है, इट इज अ टाइम अप टू विच, यानी कि डिलीवरी, है ना। डिलीवरी जब तक प्रोवाइड देना है हम लोग को, द कंपनी विल डिलीवर इट टू द कंज्यूमर, और इन अदर टर्म्स और द कंप्लीशन ऑफ जॉब्स के हिसाब से भी बात हो सकता है कि हम लोग को इतना टाइम में एक जॉब को खत्म करना है, तो इतना टाइम से खत्म करना है। तो वो जो डेटा आएगा हमारे पास, द कंपनी विल डिसाइडेड कि इतना टाइम से पहले हम लोग को ये जॉब खत्म करना है, या दिस इज द लास्ट टाइम एट विच द जॉब हैज टू बी कंप्लीटेड और हैज टू बी डिलीवर्ड, दैट टाइम इज नोन एज ड्यू डेट। ये भी टाइम में होता है, इन यूनिट्स ऑफ टाइम होता है इसका भी, ठीक है, आइदर इन डे और आवर्स, कुछ भी, ठीक है। सो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट ले लीजिए आप लोग, इफ फ्लो टाइम इज ग्रेटर देन ड्यू डेट, यानी कि हम लोगों ने ड्यू डेट डिसाइड कर लिया है कि हम लोग को 7 तारीख तक, टिल द 7th ऑफ दिस मंथ ऑफ द February, दिस थिंग हैज टू बी कंप्लीटेड और टू बी डिलीवर्ड, बट वाइल मैन्युफैक्चरिंग इट द फ्लो टाइम, है ना, वो आपका 10 तारीख तक हो रहा है, तो डिले हो जाएगा ना। वो तो डिलीवरी 7 तारीख तक करना था, delivery was meant to be done by 7th of February, but the time of manufacturing or the flow time for which the job is within the process is till what, till 10th of February। so हम लोग को डिले कितना दिन का हो गया, 3 दिन का हो गया। इसलिए जब भी फ्लो टाइम है ना, whenever your flow time will be greater than the due date, then it is a situation of delay। और फ्लो टाइम if it is less than due date, then it is no delay। ठीक है, तो फ्लो टाइम नहीं होगा, फ्लो टाइम आपका ड्यू डेट यानी डिलीवरी से पहले 7 तारीख को डिलीवरी देना था, बट 5 तारीख को हमने डिलीवरी कर दिया, ठीक है, हम लोग का जॉब खत्म हो गया है, फ्लो टाइम 5 तारीख तक में ही खत्म हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, उससे डिलीवरी 7 तारीख तक देना है तो हम लोग डिलीवरी कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देन देयर विल बी अ केस ऑफ नो डिले। जनरली डिले इज ऑल्सो नोन एज टार्डीनेस, ठीक है, टार्डीनेस के हिसाब से आता है ये क्वेश्चन, आपको गेट में पूछा जाएगा जनरली कि टार्डीनेस, एवरेज टार्डीनेस निकालो, या फिर कितना टार्डीनेस, टोटल टार्डीनेस हो रहा है वो निकालो, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे लिए। द एसपीटी रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज मिनिमम फ्लो टाइम। क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज द एवरेज मिनिमम फ्लो टाइम, देन यू विल ऑटोमेटिकली हैव टू यूज द एसपीटी रूल, है ना। तो ये गेट में क्वेश्चन आएगा। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन टार्डीनेस, आपसे अगर टार्डीनेस पूछा जाएगा, टोटल टार्डीनेस पूछा जाएगा विदाउट मेंशनिंग द रूल, कौन सा रूल, सो आप ऑटोमेटिकली एसपी2 रूल लगाएंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन शॉर्टेस्ट एवरेज फ्लो टाइम, तो वही मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम। एवरेज फ्लो टाइम जो है वो कितना है, टोटल फ्लो टाइम वन नंबर ऑफ जॉब्स, है ना, एवरेज निकालना है ना, तो जितना फ्लो टाइम लग रहा है सभी जॉब्स में
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स इन द सीक्वेंस, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज फ्लो टाइम। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, दैट हैज अपीयर्ड इन गेट 2017 फॉर 2 मार्क्स। सो यू हैव बीन गिवन फॉलोइंग डेटा रेफर्स टू द जॉब्स PQRS which has arrived at a machine for scheduling the shortest possible average flow time। यहाँ पे shortest possible average flow time is dash days। तो जॉब्स दिया हुआ है आपको, प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है डेज में, तो 15 डेज, 9 डेज, 22 डेज, 12 डेज रेस्पेक्टिवली फॉर द जॉब्स PQRS। ये आपको मेंशन किया हुआ है, ये टेबल फॉर्म आपको दिया हुआ रहेगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल एवरेज फ्लो टाइम इन डेज, और ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन आपको ऑप्शंस भी नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे किया जाता है सॉल्यूशन। तो पहले बात आपको यहां पे दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, जॉब्स दिया हुआ है, यानी सी PQRS, एंड यू विल हैव टू यूज विच रूल, ऑटोमेटिकली यू विल हैव टू यूज SPT रूल, है ना, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल आपको यूज करना है। और यूज करके पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप होगा कि डिटरमाइन द सीक्वेंस। पहला स्टेप है डिटरमाइन द सीक्वेंस। ठीक है, डिटरमाइन द सीक्वेंस बाय SPT रूल। तो यहां पे देखो, बाय शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, है ना, तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आउट ऑफ ऑल दिस सबसे पहले क्या है, तो हम लोग के पास सीक्वेंस हमें रेडी हो जाएगा। देखो अब सीक्वेंस कितना अच्छे से रेडी होगा, ये देख लो। तो सीक्वेंस सबसे पहला कौन आएगा, प्रोसेसिंग टाइम, द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इज Q। Q के बाद कौन आएगा, वी हैव S, एंड देन वी हैव P, एंड देन वी हैव R। तो द सीक्वेंस इज रेडी बाय SPT रूल, सो इजी, QSPR। अब ये QSPR को जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट इट डाउन। तो सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे, तो लेट अस राइट डाउन लाइक दिस, तो जॉब्स, ठीक है, वी हैव प्रोसेसिंग टाइम, एंड यूजिंग दिस टू वी कैन हैव द फ्लो टाइम आल्सो। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपको डेज में दिया हुआ है, आपको फ्लो टाइम भी डेज में ही मिलेगा। ठीक है, तो जॉब्स, नाउ इन दिस केस न्यू टेबल हैज टू बी prepared, and in the new table you have to write it according to the sequence that you have decided by SPT rule. So it is QSPR, sorry, this is QSPR। ठीक है, तो Q का प्रोसेसिंग टाइम देखो तो कितना है, Q का प्रोसेसिंग टाइम है 9। ठीक है, Q का प्रोसेसिंग टाइम है 9, देन S का प्रोसेसिंग टाइम है 12, एंड देन P का प्रोसेसिंग टाइम है 15, एंड R का प्रोसेसिंग टाइम है 22। देख लीजिए ध्यान से, है ना, कितना है, Q PQRS था, तो दिस वाज P, ध्यान से यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ PQRS। तो हम लोग का सबसे पहले Q, फिर 9 के बाद 12, फिर उसके बाद 15 जाएगा, फिर 22, तो 15 एंड 22 रेडी। ठीक है, सो ये पार्ट को मैं 15 को थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ, लेजिबल होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। वेन एवर यू यूज दिस PDF फॉर रिविजन, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले Q घुसेगा, the Q will enter the first in the sequence into the machine, and when it will enter, this is the initial time, तो 0 से ऐड होगा, 0 plus 9, it will take, flow time is 9 days। ठीक है, now previous job that is Q has finished by 9th day, and the processing time of S is 12, तो 9th day के बाद ही या 9th day पे ही आपका जॉब नंबर S जो है will enter the what, it will enter the machine। So 9 plus 12 is 21। So 21 days तक जॉब S को प्रिपेयर किया जाएगा, 21st डे तक। Now 21st पे हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 21st डे the job P will be ready to enter the machine, and this is 15, so this is 36। ठीक है, and R is equal to, यहाँ पे 36 है, 36 डे के बाद आपका और 22 दिन लगेगा R को प्रिपेयर करने में, सो वी विल हैव 58। तो हम लोग को सारा फ्लो टाइम मिल गया,
जॉब, इसका फ्लो टाइम, इसका फ्लो टाइम, इसका फ्लो टाइम, इसका फ्लो टाइम, फ्लो टाइम मिल गया हम लोग के पास, रेडी है हमारे पास पूरा डेटा और पूरा अच्छे से रेडी हो गया है अकॉर्डिंग टू द एसपीटी रूल। नाउ मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम is equal to sum of flow time divided by number of jobs। sum of flow time क्या है, 9 plus 21 plus 36 plus 58 divided by total number of jobs is how much, 4। so 8 plus 6 14, 14 plus 1 15, 15 plus 9 is 24। we are carried 2, 5 and 2 is 7, 7 3 10, 10 to 12 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 124। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम 124 डिवाइडेड बाय 4 हम लोग को मिल रहा है कितना, 31 डेज। इज इट क्लियर? हम लोग को 31 डेज का एवरेज, मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम मिल रहा है, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, 31 डेज। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दोगे कहाँ पे, बाय यूजिंग द वर्चुअल कीपैड आप यहाँ पे 31 लिखोगे ऐसे करके, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप आराम से जब पीडीएफ लोगे तो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड इन गेट 2018 रिसेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के लिए आया था। तो प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट्स फॉर 6 जॉब्स जो है वो दिया हुआ है, विल बी वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ए वर्क सेंटर आर गिवन इन द टेबल। टेबल में बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे इज गिवन इन द टेबल द एवरेज टार्डीनेस यूजिंग एसपीटी रूल। एवरेज टार्डीनेस पूछ रहा है, यानी कि एवरेज डिले। तो ये जो ये है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा आई एम टेकिंग सम अमाउंट ऑफ गैप सो दैट हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए जगह मिले हम लोग को, ठीक है। सो जॉब क्या क्या है देखते हैं। हमारे पास जॉब मेंशन्ड है ए बी सी डी ई एफ के हिसाब से। सो ए बी सी डी ई एफ ये क्वेश्चन है, हाँ अभी भी क्वेश्चन लिखा जा रहा है यहाँ पे। प्रोसेसिंग टाइम है 3, ठीक है। बी का है 7, सी का है 4, डी का है 9 एंड ई का है 5 एंड एफ का है 13 एंड ड्यू डेट इज 8। सबका अपना अपना ड्यू डेट है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8th डे पे खत्म हो जाए, देन 16 डेज पे खत्म हो जाए, देन सी इज 4, डी इज 18 एंड ई इज 17 एंड इट इज 19, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोसेसिंग टाइम एंड ड्यू डेट्स फॉर 6 जॉब्स ए बी सी डी ई एंड एफ वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड एट ए वर्क सेंटर आर गिवन इन द टेबल। नाउ द एवरेज टार्डीनेस आपसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज टार्डीनेस का मतलब होता है कि कितना जॉब डिले हो रहा है पहला बात तो, और कितना डिले हो रहा है वो सब, तो उसका एवरेज निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एवरेज टार्डीनेस निकालेंगे। हम लोग के पास 6 जॉब्स है, तो डेफिनेटली टोटल डिले डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग अभी अभी किससे बोल रहे हैं, एवरेज टार्डीनेस यूजिंग एसपीटी रूल। आपको ये चीज पे ध्यान देना है। यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ ना, तो एक और रूल है जो रूल नंबर बी, दैट इज नोन एज द सीक्वेंसिंग बाय अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल, EDD रूल। तो अगर वो देता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो लेट अस सी, अभी हम लोग के पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से देखना है, तो वी विल सी विच वन हैज द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम एंड विल डिसाइड द सीक्वेंस। तो हम लोग के पास सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं। तो आवर सीक्वेंस विल बी, ध्यान से देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी अपना सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का सीक्वेंस है, सबसे पहले कौन आएगा सीक्वेंस में, सबसे पहले आ जाएगा भाई ये रहा आपका ए नंबर जॉब, बिकॉज ए का है 3 शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ए हैज द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, सी हैज 4, सॉरी सी होगा ये। तो सीक्वेंस रेडी कर रहे हैं, तो ए के बाद जॉब नंबर सी आएगा सीक्वेंस में, देन वी हैव 3 4, देन वी हैव 5, 5 किसका है, ई का है, ए सी ई। देन 5 के बाद हमारे पास 7 आ रहा है, 7 किसका है, बी। देन इन द सीक्वेंस आफ्टर 7 वी हैव डी, दैट इज 9,
तो 1 2 3 4 5 हो गया, एंड देन वी आर लेफ्ट विथ ऑन F13। ठीक है, तो वी हैव आवर सीक्वेंस रेडी, ACEBDF हम लोग का सीक्वेंस रेडी है। अब हम लोग ये सीक्वेंस को यूज करते हुए हम लोग फिर से नया टेबल बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग का सीक्वेंस टेबल बनाते हैं, लेट अस सी। तो जॉब्स यहां लिखेंगे, ठीक है, देन हम लोग लिखेंगे प्रोसेसिंग टाइम। अब हम लोग को देखना है, सिंस यहाँ पे हम लोग को ड्यू डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ड्यू डेट है ना, एंड प्रोसेसिंग टाइम से हम लोग निकालेंगे फ्लो टाइम। फ्लो टाइम से ही पता चलेगा कोई जॉब डिले हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में बताया ही है कि इफ फ्लो टाइम इज ग्रेटर देन व्हाट, इफ फ्लो टाइम इज ग्रेटर देन ड्यू डेट तब डिले होगा, फ्लो टाइम लेस देन ड्यू डेट नो डिले। यही डिले को हम लोग टर्डीनेस बोलते हैं। तो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एवरेज टर्डीनेस वी नीड टू डिटरमाइन द फ्लो टाइम। तो फ्लो टाइम इज इंपॉर्टेंट गाइज, ऑलराइट। सो लेट अस से सीक्वेंस को हम लोग लिख देते हैं ACEBDF ACEBDF हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, देखो प्रोसेसिंग टाइम क्या क्या है। तो हम लोग का प्रोसेसिंग टाइम है 3, देन वी हैव 4, देन 5, 7, 9, 13। तो बेसिकली जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये देखो जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो आप लोग ये क्वेश्चन का जो टेबल है आप लोग अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, सो दैट व्हेन आई एम डूइंग द सॉल्यूशन यू कैन टैली whatever in the question has been given in the question. Now flow time क्या होगा, since A is entering first in the sequence in the machine, तो A पहले सबसे 0 टाइम पे एंटर कर रहा है, उसको 3 घंटा लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। ये डे में है क्या, या डे पे है, ओके, तो 3 दिन लग रहा है। सो फ्लो टाइम इज 3। नाउ आफ्टर 3 दिन के बाद ही जॉब नंबर C आएगा, तो 3 + 4 = 7। देन वी हैव 7th डे के बाद ही जॉब नंबर E आएगा, दैट इज 7 + 5 = 12। देन 12th डे के बाद ही जॉब नंबर B आएगा, जिसको हम लोग 7 डेज ले रहे हैं, एंड 12 + 7 = 19। 19 के बाद ही 9 दिन लगेगा, एंड वी विल हैव 28 डेज, है ना। 28 डेज के बाद ही जॉब नंबर F आएगा, एंड इट इज रिक्वायरिंग 13 डेज टू बी कंप्लीटेड, सो वी विल हैव 41 डेज of flow time for the job F, but the due date mentioned in the question corresponding to the jobs, आप ना ड्यू डेट वापस से ऐसे मत लिख देना भाई, ठीक है, आप अपना सीक्वेंस के हिसाब से लिखना, ठीक है। तो ACEBDF जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से लिखना, और corresponding to the jobs whatever the due date has been mentioned उसको लिखना। so due date for क्या है, A कितना है 8, then for C we have 4, for E देखो तो, ठीक है, तो फॉर E वी हैव 17, एंड फॉर B वी हैव 16 एज गिवन, देन फॉर द D इज 18, एंड देन इट इज 19। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान से देखना, अभी डिले के बारे में बात करते हैं। तो डिले जो है थोड़ा सा अनवांटेड चीज है, इसको हम लोग इसलिए रेड कलर पेन से लिखते हैं। तो डिले हम लोग डेज में लिखेंगे। तो देखो इसका फ्लो टाइम 3 है, लेकिन ड्यू डेट 8 दिन तक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दिन के बाद 8 दिन पे खत्म करना है, बट 3 दिन पे खत्म हो जाएगा ये। सो डिले कितना होगा, 0, नो डिले। नाउ इन दिस केस ड्यू डेट इज 4 फॉर द जॉब C, बट इट्स प्रोसेसिंग टाइम इज 7, 7 दिन लग रहा है इसको पूरा। तो डेफिनेटली फ्लो टाइम इज ग्रेटर देन द ड्यू डेट, सो 7 - 4 डिले कितना हो जा रहा है, 3 दिन का डिले हो रहा है यहाँ पे। नाउ अगेन हियर यू सी 12 डेज 17 डेज इज द ड्यू डेट, तो 17th डे पे हम लोग को खत्म होना चाहिए, बट इट्स प्रोसेसिंग टाइम इज फ्लो टाइम इज 12। इसको पूरा टाइम फ्लो होने में, पूरा मैन्युफैक्चरिंग ये प्रोसेस में जो फ्लो हो रहा है उसमें इसको 12 दिन नहीं लग रहा है। सो सिंस फ्लो टाइम इज लेस देन ड्यू डेट, पहले ही खत्म हो गया, ड्यू डेट से पहले ही खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे डिले होगा ही नहीं, तो 0। नाउ इन दिस केस योर फ्लो टाइम फॉर द जॉब B, द फ्लो टाइम इज 19 डेज, लेकिन इसको डिले हो गया है, इसको ड्यू डेट चाहिए 16 डे पे चाहिए था, तो डेफिनेटली 3 दिन का गैप हो रहा है। तो ड्यू डेट पहले चाहिए था, फ्लो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो डिले होगा भाई। कितना दिन का डिले है, 3 दिन का। इन दिस केस 18th डे पे ड्यू डेट था इसका डिलीवरी करने का या कंप्लीट करने का, बट इट इज टेकिंग 28 डेज, लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। तो काफी डिले कर रहा है ये, है ना, जैसा नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। तो 28 - 18 इज हाउ मच, 10 डेज,
है कि नहीं. नाउ हियर, ओहो बहुत ज्यादा, ये तो 19 डेज पे ड्यू डेट है ना, और 41 डेज तक ये चलेगा भाई साहब. तो 19 डेज में इसको डिलीवरी करना था या कंप्लीट करना था, इस 41 डेज ले रहे हैं. तो 41 डेज लेंगे तो नहीं चलेगा ना, तो काफी डिले कर दिए हैं. तो 22 डेज का डिले हो गया है ये. ठीक है, तो हम लोग के पास डिले तो मिल गया. अब हम लोग क्या निकालेंगे, लेट अस टेक सम मोर गैप हियर सो दैट वी कैन फिट इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल डिले कितना होगा देखो तो, सम ऑफ टोटल टार्डीनेस. तो टोटल टार्डीनेस हम लोग लिख देते हैं. टार्डीनेस, so 0 plus 3 plus 0 plus 3 plus 10 plus 22. So देखो तो 3 plus 3 is 6, 6 plus 22 is 28, 28 plus 10 is 38. तो 38 डेज का टोटल डिले हो रहा है यहाँ पे, है ना, एक महीना से भी ज्यादा. तो डेफिनेटली एवरेज टार्डीनेस निकालना है हम लोग को. तो देयरफॉर एवरेज टार्डीनेस is equal to sum of total tardiness by divided by number of jobs, यानी कि n. तो 38, टोटल जॉब्स कितना है 6, तो एवरेज टार्डीनेस कितना मिल रहा है हम लोग को 6.33 डेज. ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था आई गेस. यस, तो यहाँ पे आपको 6.33 लिखना है, और यहाँ पे डेज मेंशन ही किया हुआ है, सो उसके हिसाब से आप 6.33 लिख देना, आपका आंसर करेक्ट होगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. ऑलराइट, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे, दिस इज एनफ फॉर दिस लेक्चर. एक्चुअली पहला रूल को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल दैट इज नोन एज सीक्वेंसिंग बाय ईडीडी रूल. ये क्या होता है, stay tuned for the next lecture, and if there is any doubt related to any kind of question or any concept of this chapter, you can drop a comment or you can definitely ask me on my WhatsApp number. Also, do not hesitate to ask doubts, alright, and try to solve the questions that has appeared in the previous year's examination. Alright, so I'll see you in the next class. Please take care and stay safe.